हाय गाइस। सो अब बहुत लोगों को पता होगा कि मैं किरणजीत हूँ। मैं ही आप लोगों का डांस एंड फिटनेस ट्रेनर हूँ। सुनने में आया लास्ट क्लास आप लोगों को बहुत मजा आया। अब और मजा आएगा। अब 1x और मजा बढ़ने वाला है। आज का जो हम लोग का जो वर्कआउट सेशन रहेगा, इट्स बेसिकली भांगड़ा एंड फिटनेस। अगेन हम बेसिक से बिगनर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज सीढ़ी को शुरुआत से थोड़ा तो मजा आता है। सो एज इट इज हम लोग ये भी करेंगे। सो हम लोग एकदम इनिशियल लेवल पे आराम आराम से चीजों को समझेंगे, तो आगे जाके हम अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। या सो मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी हो गए। सेकेंड सेशन के साथ आई एम फुली पावर। बेसिक सा ब्रीफ देता हूँ। अगर किसी को भी वर्कआउट के ड्यूरेशन में अगर लगता है पानी पीने का है, गला सूख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं पीना है, वरना वो स्टमक में पेन करेगा। एंड सेकेंड इज, अगर किसी को लगता है कि मेरे को ये एक्सरसाइज, कोई भी एक सर ने एक्सरसाइज कराई वो सूट नहीं कर रही है, तो इमीडिएटली रुक जाना और नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट कर देना। एकदम ब्लैंक होकर बैठना नहीं है। 30 मिनट्स यू हैव टू बी वो फुल ऑन फुल पावर के साथ मेरा साथ देना। एंड अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में भी कर रहा हूँ, तो उसी को आप थोड़ा स्लो करो, ठीक है, चलेगा। बिकॉज देर इज नो बडी इज गोइंग टू जज यू। यू जस्ट हैव टू एंजॉय, हैव फन, एनर्जेटिक, मस्त, एकदम मस्ती में करेंगे। या सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो आज का मैं गाना सेट कर देता हूँ। सो टुडे सॉन्ग इज गोइंग टू बी सेट एंड
ਪੈਗ ਪੈਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਕਾੜੀ ਮੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰੀ ਰਾਤੀ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਪਾਏ ਨੀ ਖਲਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਸੀਨਾ ਖਾ ਰਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ
सी बड़े चावा नाल सूट पा के आई लाल सी तो सिख युद्ध मेरा ओदा बुरा हाल सी मेरे पर ना खिलार के सी छावा कीतियां पर ना खिलार के सी छावा कीतियां मादी तेरी जलाला मैनू तकदी रही ओ सेम टाइम सेम जगह अगले ओ तेरे पिट्ठे वाले जानी आके छत पे खड़ी ओ सेम जगह अगले ओ तेरे पिट्ठे वाले जानी आके छत पे खड़ी ओ सेम जगह अगले ओ तेरे पिट्ठे वाले जानी आके छत पे खड़ी ओ Now we talk. ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਣ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਚੱਟ ਕਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਰਜ ਕਲੂਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲ ਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਪੇ
ਕਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋਰਜ ਕਲੂਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲਵਾੜਾ ਚ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਕਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਬੜਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ सेक्टर 10 में मैंने देखा तेनू कला बैठे बस में फट गई मेरी अखियां दी नस और दिल न रहा मेरे बस में की करा मैं पिंड वापस मैं जाके हुण की करा मैं चंडीगढ़ करे आशिकी Drop down and do this.
ਇਹ ਗੁੱਚੀ ਐ ਜਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸੋਏ ਮਸਰ ਤੋਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਆਂਦੀ ਐ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਨਨੇ ਜੈ ਇਹ ਗੁੱਚੀ ਐ ਜਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸੋਏ ਮਸਰ ਤੋਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਆਂਦੀ ਐ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਨਨੇ ਜੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਕਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਉਹ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਉਸ ਪਰੇ ਸੇ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਮੰਗਦੀ ਪਰਸ ਦੀ ਨਾ ਢੂਮੀ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਾਸੇ ਬੇਬੇ ਘਰ ਕੀ ਕਦਾ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਬਾਪੇ ਪੁੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇ ਜਾ ਖੜੇ ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਧੂਆਂ ਤੇਰੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਜਣਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਕੁਝ ਫੁਕਰੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਆਖ ਤੇਰੇ ਕਾਨੇ ਖੜਾ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਲੇ ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾ ਗਈ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸਪੀਡ ਮੈਂ 220 ਦੀ ਚਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ I'm a night rider ਓਏ ਕੰਮ ਮਰ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੱਢਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਉਂ ਕਾਲੀ ਚੱਟੀ ਐ ਨੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਐ ਨੀ ਬੁਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟੀ ਪਾਇਆ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਉਂ ਕਾਲੀ ਚੱਟੀ ਐ ਨੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਐ ਨੀ ਬੁਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮੀ में लगती हसीने नी कुछ की भी पड़ती पसीने दी 40 डिग्री सीधी धुप पैंदी ऑन करा एसी नी ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਾਲੀ ਚੱਟੀ ਐ ਨੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖੜੀ ਐ ਨੀ ਬੁਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟੀ ਪਾਇਆ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਾਲੀ ਚੱਟੀ ਐ ਨੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖੜੀ ਐ ਨੀ ਬੁਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੱਟੀ ਪਾਇਆ I wanna hear you I'm a bad girl hूँ मैं थोड़ी naughty तेरे बिना फीकी फीकी है तुम्हारी शर्माना सीखा मैंने ना शराबी तो मत थोड़ी पीली है बंगाली मैं आई तेरे लिए देख सज धज के कन्या नहीं आग मत नच नच के मुंडे तो रहना जरा बच्चे बच्चे
ਹੌਲੀ 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 ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ मैं आई तेरे लिए बिक सच थक के अपनों नी मौत नच नच के मुंडे तेरे सारा बचपन जिन्हें ठुमके तमाया लगा ਹੌਲੀ 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 ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਲੈ ਕਿਸਨੇ ਤੁਝ ਕੋ ਰੋਕਾ ਨੀ ਗਏ ਵੱਡ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਨੋਖਾ Hi guys. So very good energy, very good strength, very good stamina. As you can see, I'm sweating like anything. So yes, it was fun session guys. I hope आप लोगों को मजा आएगा. So इसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक एक्सरसाइज करी है. हेड की, pelvic roll, pelvic muscle, shoulder level, basic side stretch, wrist stretch, everything. इसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा भांगड़ा वर्कआउट भी करा था. भांगड़ा वर्कआउट है बेसिक ऑफ भांगड़ा. जब भी कभी जो वैसे भी शादी आने वाली है, जून में दोबारा साइज स्टार्ट हो जाएंगे, so जब भी लगे ढोल पे परफॉर्म करना है. वी हैव सम बेसिक स्टेप्स नो जो हम लोगों ने आज करा है. एक तो शोल्डर मूव, साइड मूव, सिंगल हैंड, डबल हैंड, क्रॉस हैंड, लेग मूवमेंट के साथ, एंड साइड शिफ्ट 2 काउंट्स. सो ये सारे बेसिक ऑफ मूवमेंट्स है जो कि आप अपने कोई भी फंक्शंस में, कोई भी पार्टीज में, जहां भी पंजाबी नंबर्स बजे, ढोल बजे, ये कुछ स्टेप्स को आप लोग यूज कर सकते हो. इट्स अ वेरी बेसिक स्टेप्स और रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास आ जाएगी. सो जस्ट प्रैक्टिस विद दिस स्टेप्स एंड थैंक यू सो मच. हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ फिट लाइफ, गुड हार्ट, good leg stamina, good leg strength, and thank you so much. It was fantastic teaching you all. Thank you. Bye bye. वंडरफुल सेशन और बहुत ही एनर्जेटिक सेशन. ये जुम्बा का सेशन करके पसीना पसीना हो गए कि नहीं आप मेरे साथ? मैं भी बहुत एग्जॉस्ट होगी क्योंकि ये जो एनर्जेटिक सेशन लिया उसके बाद जो एनर्जी मिलती है ना वो अलग ही रहती है और वो अलग ही महसूस होता है. जैसे हम पसीना बहाते हैं, कुछ मेहनत करने के लिए हम पसीना बहाते हैं और अच्छा रिजल्ट पाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे हम फिट एंड अपलिफ्ट क्लब में साथ में मिलके पसीना बहा रहे. किस चीज के लिए? फैट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए. और ये कम्युनिटी में साथ में रह के एक दूसरे के साथ हम पसीना बहा रहे हैं. हमारी ये फैट लॉस और वेट मैनेजमेंट की जर्नी हम साथ में मिलके कर रहे हैं. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग का ये जो 1 घंटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हम हमारी हेल्थ के लिए टाइम दे रहे हैं और ये हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. और सुबह सुबह अगर ये एनर्जी मिल जाती है तो पूरा दिन कैसा होता है? बेस्ट, बहुत अच्छा.
मोदी केयर में, मोदी वे प्लान में हमने नया प्रोडक्ट रेंज जो इंट्रोड्यूस किया है, शेप शिफ्ट, उसके साथ हम फिट एंड अपलिफ्ट क्लब के साथ जुड़ के हमारी हेल्थ को अच्छी रख रहे हैं और बढ़िया एनर्जी पा रहे हैं, वेट मैनेज कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी साथ में कर रहे हैं। और हमारे साथ ये शेप शिफ्ट को लेके और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट को लेके, वेलनेस के सारे प्रोडक्ट की बास्केट को साथ में एंजॉय करते हुए बहुत सारे लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स पाए। चलो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस, और हम सुनते हैं कि क्या उन्हें फायदा हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम है पौलमी वैद्य और मैं लिफ्ट एंड अपलिफ्ट क्लब मैंने ज्वाइन किया है, उसका मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन मुझे डायबिटीज है और मुझे उसमें डेंगू हो गया था। तो उसके बाद जो भी कुछ ट्रीटमेंट चालू था, फिर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको वीकनेस तो बहुत आएगी, लेकिन आप डायबिटिक हो तो आपकी रिकवरी धीरे धीरे होगी। तो मुझे सच में बहुत तकलीफ होती थी, मैं खड़ी नहीं रह सकती थी 10 मिनट के लिए। मैं चलने भी लगी तो ढूंढती रहती थी किधर मुझे बैठने को मिलेगा। तो जैसे मेरी नॉर्मल रूटीन लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे एक टेंशन भी आता था कि अभी मेरे बिजनेस कैसे करूं, मैं मेरा रूटीन लाइफ कैसे जीऊं। बहुत पेन भी, मुझे दर्द भी होता था क्योंकि मसल लॉस बहुत हो गया था। तो तभी मुझे ये जो हमारा प्रोडक्ट है शेप शिफ्ट, ये मुझे मिला और मैंने उसे लेना शुरू किया। और इतनी मुझे अभी खुशी है कि मेरा स्टेमिना बढ़ गया है, मेरा मसल स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। तो अभी मैं कंटिन्यूअसली 15-20 मिनट के लिए चल सकती हूँ। मेरे घर के जो रूटीन काम है वो मैं 1 घंटा तक खड़े रह के कर सकती हूँ। तो मुझे, हाँ, वेट भी मेरा ज्यादा था, मुझे 25 kg कम करना है। तो वो भी एक था मेरे लिए। लेकिन जैसे ही मैंने शेप शीट लेना शुरू किया है, मैंने अभी 6 kg मेरा कम किया है। और एक बात बताऊं तो मेरा 4XL का साइज अभी 3XL हो गया है। तो बहुत खुशी है और मुझे ये विश्वास है कि मैं इस शेप शिफ्ट के साथ और कुछ करेला जामुन जूस जैसे डायबिटिक के लिए हमारे लिए कुछ मैंने ले रही हूँ, उसके साथ मेरा नॉर्मल रूटीन वापस से जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू शेप शिफ्ट की, बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे आया है इसका। और थैंक यू लिफ्ट एंड अपलिफ्ट क्लब, क्योंकि मैं वीक में 3 बार हार्डली करती थी एक्सरसाइज, लेकिन जब से मैंने ये क्लब ज्वाइन किया है, सबके साथ मिलके करने में मजा आ रहा है। तो मेरा रोज एक्सरसाइज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा कराड़कर है और चैलेंज मुझे ये आया था जब से मेरा मेनोपॉज स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में हेवीनेस थी। इसके साथ साथ बहुत मतलब काम, थोड़ा भी काम करूं तो थक जाती थी। दिन भर कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, क्योंकि टायर्डनेस थी और इसके साथ साथ कहीं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ऐसे में कुछ सॉल्यूशन मैंने ट्राई भी किए थे, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। लेकिन मुझे मोदी केयर के फिट एंड अपलिफ्ट प्रोग्राम के बारे में पता चला और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। मेरी एनर्जी लेवल वहीं से बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैं एक्सरसाइज कर रही थी। और खास करके मुझे मोदी केयर का शेप शिफ्ट का प्रीमिक्स मिला। ये प्रीमिक्स बहुत ही बढ़िया मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि मैंने देखा, जब से मैंने उसको लेना स्टार्ट किया तब से पहले तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन था मेरा वो कम हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गई। खास मुझे अच्छा लगा वो मेरा जो फूड क्रेविंग्स था, शाम के टाइम कुछ खाने की बहुत भूख लगती थी, वो मेरा कम हुआ। और इसके साथ साथ खाना कम होने लगा, लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ गई। और जो टायर्डनेस था, जो थकान महसूस हो रही थी, वो पूरा का पूरा मतलब मेरा चला गया। इसके साथ साथ खुशियां बढ़ गई। और अब मैं बहुत सारे लोगों को ये बता रही हूँ कि मोदी केयर का ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए काम कर गया, तो आपके लिए भी बहुत डेफिनेटली काम करेगा। थैंक यू सो मच मोदी केयर। गुड मॉर्निंग, मैं तनुजा अंबेगांवकर। मुझे ना ऑफ बीट प्लेसेस घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो एक जगह पे मैं वाटरफॉल देखने गई थी, लेकिन वाटरफॉल में एक रास्ता नहीं था, पूरे स्टोन थे और स्टोन में चढ़ के वहां पे जाना था। तो 2 स्टोन के बीच में मेरा पाँव अटक गया और मैं गिर गई। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो फॉर्चुनेटली फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन पूरा पाँव में सूजन आ गई थी। इतना बड़े टैबलेट्स लिख के दिए थे, लेकिन मुझे मोदी केयर प्रोडक्ट पे बहुत विश्वास था। तो पहले तो मैंने अपना पेन ऑयल लिया और पेन ऑयल लगाया, मसाज नहीं किया, सिर्फ लगाया और पूरा ऑयल अंदर चला गया। उसके बाद
एक टैबलेट ली, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब कैल्शियम और उसके साथ में लगने वाली सब चीजें इसमें है। तो इसका मुझे रिजल्ट इतना अच्छा आया कि सुबह शाम मैंने कैल्शियम लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद 3 दिन बाद मेरा पेन भी नहीं रहा और तकलीफ भी चली गई। लेकिन मैं पूरे 5 दिन लगातार पेन ऑयल और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेती रही, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद आया हमारा शेप शिफ्ट, और ये तो मुझे भी अपना वेट तो कम करना ही था, तो उसके साथ फिट एंड अपलिफ्ट क्लब ज्वाइन करना ही था। तो रेगुलरली मैं अब कर रही हूँ, और अगर आप मुझे पूछो कि मुझे कहाँ पेन है, तो मुझे याद ही नहीं कि ये इस पाँव में है कि उस पाँव में है। तो इतना मेरा रिकवरी हो गया। तो इसलिए मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बोलने के लिए तो कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है और जड़ से बीमारी को हटा देता है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नेत्रा परांजपे है। मैं चेंबूर मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं एक शुगर पेशेंट, मुझे शुगर का प्रॉब्लम था, मतलब डायबिटिक पेशेंट थी। और कभी भी मेरा शुगर है ना, लेवल 350 के नीचे आता ही नहीं था। तो मुझे पता चला, और ये मोदी केयर का मुझे करेला जामुन जूस के बारे में मुझे पता चला। मैंने इसको दिन में दो बार लेना स्टार्ट किया, और इट वॉज अ मिराकल कि मेरा शुगर विद इन 15 डेज, मतलब कितना भी मैं डाइट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, मेरा कभी शुगर कम नहीं होता था। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया करेला जामुन जूस, तो इसके कारण मेरा शुगर लेवल 15 डेज में 200 के करीब आया, और विद इन अ मंथ मेरा लेवल हो गया 95। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरा नींद का जो ड्राउजीनेस था वो चला गया, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, मेरी थकान चली गई, और मैं एक्सरसाइज भी जोरों से करने लगी। उसके साथ साथ मैं बहुत खुश हो गई उसके कारण। और लिफ्ट स्टे, ये जो क्लब है वो मैंने ज्वाइन किया, और अपना जो शेफ शिफ्ट है उसके वो भी मैं यूज करना स्टार्ट किया, और मेरा वजन भी कम होने लगा। और थैंक यू सो मच मोदी केयर, कि जिन्होंने हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाए। सो थैंक यू वंस अगेन। वाओ, वंडरफुल। सारे लोगों की खुशियां चेहरे पे कितनी दिखाई दे रही है। जो पेन था, उन्होंने अपना पेन रिलीव किया है सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। और बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक बार तालियां तो होनी ही चाहिए। और कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। हम लाइफ में सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, वेकेशंस एंजॉय करना चाहते हैं, हमने जो अर्न किया है पैसों को एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन हेल्थ होगी अच्छी तो सारी खुशियां हमारे साथ है। और इतने सारे टेस्टिमोनी सुन के तो समझ में आ ही रहा है कि लोगों ने अपनी हेल्थ को अर्न किया है। और ये अर्न करने के लिए कुछ साधना जरूरी है। मानते हो आप? साधना जैसे एक संगीतकार है, वो एवरीडे रियाज करता है, साधना करता है, अच्छा सिंगर बनने के लिए एवरीडे 1 घंटा देता है। हमें क्या करना है? हमारी हेल्थ को अर्न करने के लिए साधना करनी है, एक्सरसाइज की। डेली साधना कीजिए, डेली फिट एंड अपलिफ्ट क्लब में जुड़ते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। और ये एक्सरसाइज भी क्यों करनी है? क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ को अर्न कर रहे हैं। किस चीज के लिए? हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है, लेकिन मसल गेन हो रहे हैं, एनर्जी अच्छी हो रही है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जुम्बा के सेशंस में हमारी एनर्जी लेवल कितनी हाई हो रही है। हम हमारे हार्ट बीट्स को, हार्ट मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जब हम योगा के सेशंस कर रहे हैं तो कुछ प्रॉप्स के साथ भी हम कितनी अच्छी एक्सरसाइज सीख रहे हैं। कभी टॉवेल के साथ कर रहे हैं, कभी बॉटल के साथ कर रहे हैं, और डांस भी कर रहे हैं, तो नए नए स्टेप सीख रहे हैं। और यही लाइफ में खुशियां देने वाली है। तो फिट एंड अपलिफ्ट क्लब के साथ हम जुड़ के हमारी कम्युनिटी में भी ये खुशियां देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हम ही नहीं, लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फिट एंड अपलिफ्ट क्लब। अब मैं जाते जाते एक आपको टिप देना चाहती हूँ कि हम शेप शिफ्ट तो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिट एंड अपलिफ्ट क्लब में भी आ चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन डाइट का हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। तो यहाँ पे 3 P's के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला पी है प्लांट।
हमारे थाली में जो भी हम खाना फूड हमारे थाली में परोसा जाता है, तब हमें चेक करना है कि क्या हमारे थाली में सलाद की मात्रा है, प्लांट बेस्ड सब्जियां जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो हमारे डिश में है कि नहीं, वो इंक्लूड करना है। सेकंड पी है प्रोटीन। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है। आप भी सब लोग मानते रहेंगे कि प्रोटीन हमारे थाली में कितना होता है, लेकिन प्रोटीन को लोड करना होता है, अलग से लेना होता है। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन अपनी थाली में प्रोटीन का लोडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये अपने अप्रोप्रिएट मात्रा में अगर लोगे तो मसल के लिए, सेल्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पी है फिजिकल एक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी फिट एंड अपलिफ्ट क्लब में कई सारे लोग नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम पे वो जॉब पे चले जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सुबह 8 बजे का सेशन है और शाम को 5 बजे का सेशन है। आप कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हो। अगर वो भी ना करे तो वॉक के लिए चले जाइए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो खाना खाने के बाद थोड़ा एक 500-600 स्टेप्स चल लीजिए, वो भी एक छोटी छोटी एक्टिविटी। लैपटॉप के सामने 1 घंटा बैठे हो तो कुछ उठ के कुछ फिजिकल हलचल कर लीजिए, वो भी एक्टिविटी में माना जाएगा। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में कहूंगी कि 3 बार एक स्लोगन बोलना है डेली एक्सरसाइज करने के बाद, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम हेल्दी एंड फिट। और खुद को शाबाशी देना है कि थैंक यू, ये बॉडी को शाबाशी देना है कि आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अपनी सेहत के लिए आप बहुत कमिटेड हो। और इसी के साथ मैं थैंक यू मोदी केयर कहना चाहती हूँ कि मोदी केयर का ये फिट एंड अपलिफ्ट प्रोग्राम हम सबको आगे लेके जा रहा है हेल्थ की दुनिया में, और हमारी कम्युनिटी को हम हेल्दी बना रहे हैं। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू एवरीवन।